Salient features of nuclear forces. Nuclear forces are the strongest forces existing in nature. So, we are discussing the force and the relative strength. Nuclear strong 1, nuclear weak 10 to the power minus 13. This is a comparison to the nuclear forces. Electromagnetic forces 10 to the power minus 2. Gravitational forces 10 to the power minus 39. Second point, nuclear forces have short range. We know this very well, whose range is approximately few Fermi, 2 to 3 Fermi. Nuclear forces are spin dependent. Fourth point, nuclear forces are attractive in nature but with repulsive core. As you can see, beyond 3 Fermi, there is no force. But as we move in the range between zero point 0.8 Fermi to 3 Fermi, this shows an attractive nature, and below zero point 0.8 Fermi, this shows a repulsive nature. So nuclear forces are attractive in nature but with repulsive core. Fifth point, nuclear forces are non-central forces, i.e. nuclear forces are tensor forces. Nuclear forces depends on velocity of nucleons as well as orientation of spin of nucleons. Sixth, nuclear forces are charge independent. Means to say, force between neutron, which is obviously a neutral particle. So nuclear forces are charge independent here, obviously. And in neutron proton, there is only one charge, positive charge of proton, again charge independent, and then proton proton. See, तो अगर आपको लगता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कोलम्बिक रिपल्शन होगा, yes there will be repulsion between proton proton, but nuclear forces are much stronger than electrostatic forces. You know this very well, so it can overcome it easily. Seventh point, nuclear forces have isotopic invariance related to isospin, which is conserved in strong interaction. So strong interaction में आपके पास आते हैं strong interacting particle like hadrons, neutron and proton. Okay, so इनके पास आइसोस्पिन कंजर्व रहती है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की इक्वल होती है, तो आपके पास आइसोस्पिन हाफ हाफ एंड एक्ट सच दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिमेन सेम इनसाइड न्यूक्लियस. ओके, तो अब ये पूरा क्या कह रहा है, अब देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपके पास मास अप्रॉक्सीमेटली सेम है, सिर्फ चार्ज का फर्क है. अगर न्यूक्लियर फोर्स इन दोनों पर सेम लग रही है, ठीक है, देन देयर शुड बी अ प्रॉपर्टी विच इज सेम फॉर बोथ, विच इज आइसोस्पिन. ओके, एंड आइसोटोपिक इनवेरियंस इज acts such that number of proton and neutron remains same inside nucleus. Okay, for large nuclei, number of neutron exceeds number of protons, obviously, to compensate coulombic repulsion between protons. Example, uranium 235. Okay. एट्थ पॉइंट, न्यूक्लियर फोर्सेस आर ऑफ एक्सचेंज इन नेचर. तो ये जो एक्सचेंज थे ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए थे. जैसे कि फर्स्ट हम बात करते हैं विग्नर एक्सचेंज के बारे में. उन्होंने डिस्कवर किया कि कोई एक्सचेंज नहीं होता, कि जैसे न्यूट्रॉन प्रोटोन है, उसका न्यूट्रॉन का अप स्पिन है, प्रोटोन का डाउन स्पिन है, तो वैसा ही हमें देखने को मिला. Majorna exchange, he observed the space or position exchange. Like you can see, the spin remains same, but the positions altered. Bartlett exchange, spin exchange is there. Okay, Heisenberg exchange. In Heisenberg exchange, spin space change. See, with the change in position, the spin also changes. Ninth property, nuclear forces possesses the property of saturation. It is combined effect of short range, repulsive, and exchange nature. We know this. Experimental fact of this is binding energy per nucleon is almost constant, which is 8 mega electron volt. This is all about that point which we have read in the previous lecture. 10th point, nuclear forces acts only upon hadrons. We have mesons and baryons. And baryons we will count nucleons, neutron, proton, and hyperons. Nuclear forces do not act on leptons. Example, electron, as leptons are weak interacting particles. Nuclear forces occur by exchange of mesons. Example, pi meson, sigma meson, omega meson, rho meson. Okay, so there will always be an exchange. Let's say we have two neutrons. So if there is a nuclear force between them, then there will be a first exchange of meson between them. 12th point. So you know this. If you don't know this, let's know this. Proton. Proton is made up of two up quark and one down quark. Neutron is two down quark and one up quark. Okay. Here U signifies the up quark and D signifies the down quark. Okay. Strongest nuclear force is between quarks inside hadrons. So strongest nuclear force is between quarks, means up quark, down quark, inside hadrons. Okay. It is so strong that we cannot break hadrons into quarks. So the force between hadrons is called residual strong force. Next, Yukawa-Mason theory and uncertainty principle. Del E dot del T is equals to H cut. तो देखिए इसे ऐसे समझ सकते हैं कि A पर्सन के पास बॉल है और उसे B को पहुंचानी है. अगर उसके पास बॉल लाइट होगी तो वो उसको पहुंचा देगा. अगर जैसे जैसे हैवी होती जाएगी वो उसको नहीं पहुंचा पाएगा. तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m. So larger the mass, shorter the range. Okay. Talking about electromagnetic force, let's say Q1 charge emits a photon and this is absorbed by Q2 charge. Okay. So we know that rest mass of photon is 0. So by the Yukawa-Mason theory, range is directly proportional to 1/m. So here the rest mass of photon is 0. So range is infinite. Again for the gravitational force, m1 emits gravitons and this is absorbed by m2. Again the rest mass of gravitons is 0. So range is also infinite here. Exchange of pi mesons, pi plus, pi negative, pi 0. So here the mass of pi mesons positive and mass of pi meson negative is approximately same, 140 mega electron volt per c square. And mass of pi 0 is 135 mega electron volt per c square. Mass of proton 938.3 mega electron volt per c square.
mass of neutron 939.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c स्क्वायर. नाउ लेट्स सी फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन. अब आप देखिए इसके अंदर जब p एमिट्स करता है पाई 0, तो p रिमेन्स स्टिल p and there is no change in p. So uncertainty in energy is del E, which is m pi naught c square. So the rest mass of the exchange pi naught meson, force between proton and neutron. Let's see what happened in this case. Proton emits pi plus and converts into neutron. So proton converts into neutron by emitting pi plus, or neutron become proton by absorbing pi plus. So here again the uncertainty in energy is del E m pi plus c square, which is the rest mass of m pi plus meson. Next, force between n and p. N converts into p by emitting a pi negative. N emits pi negative and converted into p. P plus pi negative gives us neutron, or we can say neutron by emitting pi negative gives us proton. So by the uncertainty principle, del E del T is equals to h cut. We know this. Okay. So del E is equals to mc square. M is the rest mass of exchange particle. So del T is equals to r by c. Substituting both these value in uncertainty principle formula. So range is h cut c by mc square, which is clearly r proportional to 1 by m, which is proposed by Yukawa. Again, here h cut c is equals to 197.3 mega electron volt Fermi. You know this. During Yukawa experiment, Yukawa took the range r is equals to 2 Fermi to evaluate the mass of each and every meson, and this was clearly and rightly predicted. So as you can see, in 1935 Yukawa meson theory was discovered, and in 1937 mu leptons were discovered, and the mass of muons is 105 mega electron volt per c square, and in 1947 pi mesons were discovered. तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एक प्रोटॉन है वो आपके पास न्यूट्रॉन और पाई प्लस से बना हुआ है, और एक जो न्यूट्रॉन है वो आपके पास प्रोटॉन और पाई नेगेटिव से बना हुआ है. नेक्स्ट हम युकावा पोटेंशियल के डेरिवेशन पर नहीं जाएंगे. युकावा पोटेंशियल की आप डेफिनेशन फॉर्मूला देख लीजिए. वी आर इज इक्वल्स टू माइनस जी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस म्यू आर बाय आर, वेयर जी इज मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल और एम्पलीट्यूड, म्यू युकावा पार्टिकल मास, आर इज रेडियल डिस्टेंस. So try this question. The range of nuclear force between two nucleons due to the exchange of pions is 1.40 Fermi. If the mass of the pion is 140 mega electron volt per c square and the mass of rho meson is 770 mega electron volt per c square, then the range of force due to exchange of rho meson is. देखिए यहाँ पर सिंपली अब r इज टू एच कट सी बाय एम सी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं. रेंज का फॉर्मूला जो युकावा ने निकाला था, तो उससे इजीली सॉल्व हो जाएगा. इसका आंसर सी है. तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं. सो सी del E dot del T is equals to h cut. Again, by the uncertainty principle, we are discovering this again. So r is equals to h cut c by m c square. So our range is directly proportional to 1 by m. So when everything is given, तो हम यहाँ पर h cut c निकालेंगे. h cut c की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 1.40 क्रॉस 140 आ गई है. ये हम रेंज ऑफ रो मेसॉन निकालने के वक्त पुट कर देंगे h cut c की वैल्यू, which is equals to 0.25 Fermi. Next question. The meson theory of nuclear forces assumes the virtual exchange of pions. If a nucleon emits a virtual pion of rest mass 270 mass of electron, calculate the range of nuclear force. सेम यहाँ पर भी वही फॉर्म लगेगा. आर इज टू एच कट सी बाय एम सी स्क्वायर. तो सब वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 1.43 Fermi. सो लेट्स सी दिस. हियर इट इज. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल्स की. सो इन न्यूक्लियर मॉडल्स, लिक्विड ड्रॉप मॉडल वाज डिस्कवर्ड इन 1937. C.F. von Weizsäcker and H. A. Bethe develop Bethe-Weizsäcker semi-empirical formula for binding energy और mass. देखिए यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है वो सेमी इंपेरिकल किया गया है. इंपेरिकल का मतलब होता है जो कि पूरा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया हो. सेमी इंपेरिकल यहाँ पर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कुछ एजम्पशंस और अप्रॉक्सीमेशन टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशन हम यूज़ करते हैं. ओके, तो अब देखते हैं कि यहाँ पर जैसे कह रहा है कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, ठीक है, तो लिक्विड को हम न्यूक्लियस से कैसे कंपेयर करते हैं, तो क्या सिमिलरिटीज़ देते हुए इन्होंने ये कहा. तो देखिए जैसे कि न्यूक्लियस में आपके पास न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, वैसे दूसरी तरफ आपके पास लिक्विड ड्रॉप में सरफेस टेंशन फोर्स होता है जो कि उसको बाइंड रखता है एज अ लिक्विड को. न्यूक्लियस में आपके पास डेंसिटी कांस्टेंट होती है जो कि हमने देखी थी. सेम आपके पास लिक्विड की भी डेंसिटी कांस्टेंट होती है. थर्ड पॉइंट, कांस्टेंट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काम करता है इसके अंदर फैक्टर एक, तो उधर आपके पास जो फैक्टर काम करता है वो काम करता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का. फोर्थ पॉइंट न्यूक्लियस में कि यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस देखने को मिलेगी, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर. और लिक्विड ड्रॉप मॉडल में आपको क्या देखने को मिलेगा, इंटरनल थर्मल वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब कुछ डिफरेंसेस भी देख लेते हैं. डिफरेंसेस में आपके पास देखिए जहाँ पर कि आपके पास न्यूक्लियस माइक्रोस्कोपिक है वो एक क्वांटम करेक्टर है, और दूसरी तरफ आपके पास लिक्विड ड्रॉप एक मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना है, ठीक है. तो ये क्वांटम कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक शो करता है. दूसरा पॉइंट इसके अंदर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियंस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में होती है, उस इतनी रेंज में होती है, जहाँ पर कि एक लिक्विड में आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होती है. अब देखते हैं सेमी इंपिरिकल बाइंडिंग एनर्जी और मास फॉर्मूला. ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको ध्यान ही है, बी जो कि आपके पास फंक्शन है मास नंबर एंड प्रोटोन नंबर इज इक्वल टू जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन. एम एन यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को है, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस एम ए जेड एटॉमिक मास क्रॉस सी स्क्वायर.
bracket close cross c square. And we can also calculate from here atomic mass as we are also coining the another term which is mass formula. तो बाइंडिंग एनर्जी खुद ही में आपके पास एक्सप्रेस की जाती है नंबर ऑफ एनर्जी टर्म्स में, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इंडिविजुअली हर एक एनर्जी टर्म को पढ़ेंगे जो कि बाइंडिंग एनर्जी को कंट्रीब्यूट करती है, जिससे हम बाइंडिंग एनर्जी को एक्सप्रेस करके लिखने वाले हैं, ठीक है। तो पहली बात तो है वॉल्यूम एनर्जी की। आप जानते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कांस्टेंट रहती है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ओके, and the whole nucleus is occupied by the nucleons. So volume is directly proportional to nucleons A. So from here we can say the volume energy which is contributing binding energy is volume energy directly proportional to A. And on removing the proportionality constant, AV is equals to 15.7 mega electron volt. Next, surface energy. तो जो न्यूक्लियंस आपके पास सरफेस पर हैं वो इनसाइड अट्रैक्शन फील करते हैं, बट उनके बीच में पहले से ही न्यूक्लियंस है, तो वो अपनी जगह पर ही क्लिंच रहते हैं, जिसकी वजह से एक ऐसी कंडीशन बन जाती है कि न्यूक्लियस अनस्टेबल होने लगता है। जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होने लगता है जिसकी वजह से एनर्जी डिक्रीज करती है, इसलिए हम इसके फॉर्मूले में नेगेटिव साइन लगाते हैं। अब आइए देखते हैं कि आपके पास ES जो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑब्वियसली 4πr², उसके बाद फिर मैंने R इज टू R नॉट A⁻1/3 सब्स्टिट्यूट कर दिया इसके अंदर, ओके। तो आपके पास सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू माइनस AS A⁻2/3 वेयर AS इज 17.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट आपके पास कूलम्ब एनर्जी, कूलम्ब रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स डिक्रीज स्टेबिलिटी, ओके। सो देखिए यहाँ पर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो आपके पास एनर्जी क्या होगी, एनर्जी नेगेटिव में होगी। जैसे कि आपने EMT पढ़ा होगा कि फॉर ए आर रेडियस, जैसे कि हम यहाँ पर न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज जैसे आपके पास ZE होगा प्लस ZE होगा, ठीक है, प्रोटॉन्स ही होते हैं ना सिर्फ, तो उसके अंदर आपके पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, U इज इक्वल टू 3/5 1/4πε0 Q²/r, ठीक है। ये आपने पढ़ी है तो भी ठीक है, नहीं पढ़ी है तो आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए, ठीक है, नहीं पढ़ी तो आप आगे पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके पास कोलम्बिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, -3/5 1/4πε0 ZE²/r, ओके। क्योंकि इस प्रोटोन प्रोटोन रिपल्शन के कारण स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी और आपको ये नेगेटिव एनर्जी देखने को मिलेगी, ओके। वापस से इसके अंदर फिर मैंने R रेडियस का फॉर्मुला सब्स्टिट्यूट कर दिया है, R इज इक्वल टू R नॉट A⁻1/3, ओके। तो यहाँ से हमारे पास कूलम्ब एनर्जी जो आ गई है वो -AC Z²/A⁻1/3 आ गई है, और AC मैंने सब कांस्टेंट डाल दिए जो भी थे आपके पास 3E² 20πε0 ठीक है। और आपके पास AC की वैल्यू कितनी है 0.71 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। पर देखिए इसका ओल्ड लिटरेचर भी देख लीजिए, पहले इसमें जो वैल्यू निकाली जाती थी तो उसमें यूँ कहा गया था कि जैसे प्रोटोन प्रोटोन में रिपल्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो आपके पास किसी दो प्रोटोन के बीच में होना शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं, जैसे Z नंबर ऑफ प्रोटोन्स हैं आपके पास तो ZC2 कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। उसमें आपके पास ये कूलम्ब एनर्जी कितनी आती थी -AC ZZ-1 ठीक है। तो हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो आप इन दोनों को ही याद रखिएगा। और यहाँ पर आपके पास AC की वैल्यू है 0.71 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E²/4πε0 की वैल्यू तो हम पहले बात कर ही चुके हैं 1.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं असिमेट्रिक एनर्जी के बारे में। तो देखिए इसको समझने के लिए आप ग्राफ देखिए N और Z के बीच में। देखिए लाइटर न्यूक्लियस के लिए तो आप देखते हैं ये एकदम सिमेट्री चलता है, और जैसे ही हैवियर न्यूक्लियाई गेम में एंटर करते हैं तो उसके अंदर आपको असिमेट्रिक कैरेक्टर शो होना शुरू हो जाता है। तो जो इसमें हमें रीजन ऑफ स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, ठीक है, वो यहाँ पर बता रहा है कि आपके पास जो हैवियर न्यूक्लियाई हैं वो आपके पास स्टेबिलिटी डिस्टर्ब कर रहे हैं, और जैसे जैसे आपके और ये भी बात है कि जैसे जैसे आपके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो आपके पास स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ओके। तो इसी बात को आगे लेके चलते हुए कि आपके पास एसिमेट्रिक एनर्जी जो आपके पास है वो नेगेटिव में आती है, ठीक है, वो आपके पास कितनी है -A एसिमेट्री N-Z²/A, ओके। सो this is directly proportional to N minus Z square, okay, where N is equals to A minus Z, we know this, okay. So we can also substitute and get this red box formula also, okay. तो आपके पास A symmetric आपके पास 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं पेयरिंग एनर्जी की। पेयरिंग एनर्जी आप देखिए यहाँ पर ध्यान से P and N tend to form pairs, ठीक है। अब देखिए पहले इसके अंदर लिखा हुआ है even Z and even N nuclei both are in pairs more stable, ठीक है। तो even Z even N, तो आप कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं पहले इसका 2He4, ओके। तो इसमें आपके पास क्या है, इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है। जब इसमें कहा जा रहा है कि P and N टेंड्स टू फॉर्म पेयर्स, तो P के साथ पेयर बनाएगा, N के साथ पेयर बनाएगा, तो आपके पास ये पेयर बन गया एक, ठीक है, ये स्टेबल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास देखिए इवन Z ऑड N, ठीक है, या फिर ऑड Z इवन N, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास वन पेयर इज पॉसिबल लेस स्टेबल देन अबव। तो इसका एग्जाम्पल भी ले लीजिए आप ले लीजिए इवन Z एंड ऑड N वाला लिथियम का 3Li7, ओके। नेक्स्ट आपके पास ऑड Z ऑड N, ओके। तो बोथ आर अनपेयर्ड लीस्ट स्टेबल। तो इसके अंदर आप एग्जांपल ले लीजिए 1H2 का, ठीक है, हाइड्रोजन का आइसोटोप का एग्जांपल लिया मैंने 1H2। तो इसके अंदर आप देखिए पेयर कौन सा बन सकता है, मैंने कहा था आपको प्रोटॉन का प्रोटॉन के साथ पेयर बनेगा, न्यूट्रॉन के साथ पेयर बनेगा, तो यहाँ पर पेयर पॉसिबल नहीं है, तो लीस्ट स्टेबल है ये, ठीक है, एज बोथ आर अनपेयर्ड, ओके। तो यहाँ पर हम निकलाएं कि आपके पास पेयरिंग एनर्जी कितनी होगी, पेयरिंग एनर्जी आपके पास जब Z इवन N इवन आपके पास मींस A इवन होगा तो आपके पास प्लस AP A⁻³ एंड इफ Z इवन N ऑड और Z ऑड N इवन मींस A इज ऑड, this is equals to 0, and when Z odd N odd A is even, this equals to minus AP A⁻³ okay, where AP is equals to 33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो इवन बनता है जब A तो आपके पास वो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है तो वो पॉजिटिव है, और जब आपके पास
क्योंकि आप देखिए जब आपके पास Z और N इवन इवन होते हैं तो आपके पास वो स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, और आपके पास जब Z और N और लेके चलते हैं तो आप क्या होता है इसके अंदर स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, तो एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। पर जो मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें आपको डेल की वैल्यू मॉडिफाइड हुई दिखेगी, तो मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स की वैल्यूज़ भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसमें आपके पास प्लस ए पी ए टू द पावर माइनस हाफ फॉर इवन जेड इवन एन एंड जीरो विच इज अगेन सेम इवन एंड ऑड न्यूक्लियाई, एंड माइनस ए पी ए टू द पावर माइनस हाफ फॉर ऑड जेड ऑड एन। Here AP is equal to 12 mega electron volt as comparison to 33.5 mega electron volt in the previous experimental results. Simply now we are adding all the results that we have. Okay, तो हमने यहाँ पर सब ऐड कर दिया इसके अंदर, और हमारे पास क्या आ गई है, बाइंडिंग एनर्जी आ गई है अकॉर्डिंग टू द लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ओके, तो हम यहाँ से मास भी निकाल सकते हैं इजीली, बस हमें बाइंडिंग एनर्जी सब्स्टिट्यूट कर देनी है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर गाइड कर रखा है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन प्लॉट की, ठीक है। तो इसका जो आपके पास ग्राफ बनेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस न्यूक्लियन बनेगा। ओके, तो इसके अंदर फर्स्ट टर्म थी हमारे पास वॉल्यूम की, वो आपके पास क्या आया था, कांस्टेंट आया था पूरा पूरा आपके पास वो, तो आपको ये स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी ऊपर ऊपर EV/A। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सरफेस एनर्जी की। तो देखिए सरफेस एनर्जी की मैं बात करें तो हम जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे आपके पास, तो आपके पास सरफेस पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे, तो उसकी वजह से सरफेस पर भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, सरफेस एनर्जी और ज़्यादा डिक्रीज होगी। ओके, नेगेटिव में दिखने को मिलेगी आपको ये, तो आपको ये जो कर्व दिखेगा वो आपको दिख रहा होगा, ये का कर्व दिख रहा होगा आपको। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कोलम्बिक एनर्जी की तरफ, ठीक है। कोलम्बिक एनर्जी जो आपके पास डिक्रीज आएगा वो आपके पास कैसा होगा, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, जैसे जैसे जेड इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आपके पास कोलम्बिक रिपल्शन और ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। और जैसे जैसे आपके पास ए इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये कोलम्बिक रिपल्शन डिक्रीज होगा। तो ए फैक्टर तो इसको बढ़ा रहा है और एक फैक्टर इसको गिरा रहा है, पर आपके पास ये मैटर करता है कि ये स्टार्ट कब होगा, जेड इक्वल टू 2 पर स्टार्ट होगा, तो तभी हमने ग्राफ भी इसका जेड इक्वल टू 2 पे स्टार्ट किया, ठीक है। क्योंकि आपके पास कोलम्बिक रिपल्शन कब होगा, जबकि एटलीस्ट 2 प्रोटॉन तो हो, ठीक है। तो आपके पास वो कर्व कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और सेम आपके पास एसिमेट्रिक के बारे में बात की जाए, एसिमेट्रिक में आपके पास देखिए शुरुआत में तो आपके पास ये क्या चलता था, शुरुआत में तो सिमेट्री शो करता ही था ना, तो हमने इसको जेड इक्वल टू एन तक तो सिमेट्रिक शो किया है, उसके बाद असिमेट्रिक एनर्जी आनी शुरू हुई है, ठीक है। तो वो आपके पास कुछ ऐसे नेगेटिव में देखने को मिलेगी। ओके, और इन सब का रिजल्टेंट ग्राफ आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आपके पास रेड लाइन में दिख रहा है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि इसने ओके एक्सप्लेन तो कर दिया है इसने, मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपके पास स्टेबिलिटी इसने दिखा दी है, पर लाइटर न्यूक्लियर के लिए क्या होगा, हैवी न्यूक्लियर के तो शो कर दिया इसने। तो यहाँ पर इसका ये लिमिटेशन है, ठीक है। पीक्स एट लोअर ए कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय लिक्विड ड्रॉप मॉडल, दिस प्लॉट शोज बेटर रिजल्ट फॉर ए ग्रेटर देन 40। ओके, नेक्स्ट अब आप देखिए आगे, ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड फॉर मोस्ट स्टेबल आइसोबार। तो आइसोबार तो हम सभी जानते हैं कि आपके पास आइसोबार में क्या, आपके पास मास नंबर सेम एंड प्रोटॉन नंबर डिफरेंट। ओके, तो आपके पास यहाँ पर मैंने ऊपर शो भी किया Z1XA, Z2YA, Z3 ZA। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास प्रोटॉन नंबर तो डिफरेंट है और आपके पास मास नंबर सेम है, ठीक है। तो ये तीनों ही एक दूसरे के क्या है, आइसोबार है। तो हमें क्या पता लगेगा इसके अंदर आपके पास स्टेबल आइसोबार कौन सा है, मोस्ट स्टेबल आइसोबार विल हैव मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी ऑब्वियसली। ओके, स्टेबल है तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है, और मिनिमम मास। ओके, वी नो दिस। तो देखिए मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी होगी, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पर ए तो कांस्टेंट है आपके पास, तो कर्ल बी ओवर कर्ल जेड आपके पास एट ए कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं। अब क्योंकि देखिए आप जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं और जो लास्ट डेल आपके पास टर्म है पेरिंग एनर्जी वाली टर्म, तो वो आपके पास क्या इंडिपेंडेंट ऑफ जेड है, तो वो आपके पास वैसी 0 हो जाएंगी, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करके नहीं दिखाऊंगा, और बाकी सब कुछ डिफरेंशिएट कर रखा है। तो इसके अंदर आपके पास जेड का जो आंसर बनता है, आपके पास जेड के जो मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए जो वैल्यू बनती है वो आती है जेड इक्वल्स टू A/2 प्लस AC/2 एसिमेट्रिक A⁻²/3। ओके, हाँ, पर आप यहाँ पर एक ये बात ध्यान रखिएगा कि जो हमने कोलम्बिक रिपल्शन में जो एनर्जी निकाली थी वहाँ पर मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, एक तो Z² की फॉर्म में और एक Z(-1) की फॉर्म में। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ Z² वाले के लिए मतलब कि एप्लीकेबल है और दूसरे वाले के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपको दूसरे वाले के लिए पूछा जाता है तो आपको ये सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए ये Z की वैल्यू निकालनी होगी। ओके, तो अब मैं इस फॉर्मूले को नेक्स्ट पेज पे शो कर रहा हूँ आपको। तो देखिए अब इस फॉर्मूले को याद करने का क्या तरीका है, तो आप ये तो जानते हैं ना आपके पास फॉर लाइटर न्यूक्लियर आपके पास Z इक्वल्स टू N चलता है, ठीक है। और Z इक्वल्स टू N चलता है तो मतलब कि और जो A होता है वो इनका डबल होता है, ठीक है। तो Z इक्वल्स टू A/2 फॉर द लाइटर न्यूक्लियर, ठीक है। ये प्लस वाला साइन नहीं बता रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, जो नीचे प्लस में चल रहा है ना डिनोमिनेटर में वो नहीं आएगा, ठीक है। तो लाइटर न्यूक्लियर के लिए फॉर स्मॉल a Z इक्वल्स टू A/2, तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जैसे आप हैवी न्यूक्लियर की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या दिखता है कि आपके पास जो Z है वो लेस देन A/2 होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म्स कुछ एंटर हो जाएंगी, तो आपके पास AC/2 एसिमेट्रिक A⁻²/3 ये एंटर हो गया, ठीक है। तो वैसे तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि AC और एसिमेट्रिक की आपके पास वैल्यूज़ क्या है, ठीक है। इन केस अगर आपको गिवन नहीं है तो आप ये वैल्यूज़ लेके चलेंगे। AC आपके पास 0.71 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड एसिमेट्रिक की वैल्यू आपके पास 23.69 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये आपके पास Z की वैल्यू होगी। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर टोटल बाइंडिंग एनर्जी बी ऑफ न्यूक्लियस इज करेक्ट। तो देखिए डायरेक्ट इसने सिर्फ फॉर्मुला ही पूछ लिया कि कौन सा फॉर्मुला करेक्ट है, तो बताइए इसके अंदर से कौन सा फॉर्मुला करेक्ट है। हाँ जी, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मुला फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कंटेन्स अ सरफेस करेक्शन टर्म, दिस टर्म डिपेंड्स ऑन द मास नंबर ए ऑफ द न्यूक्लियस इज। तो देखिए तो सिर्फ इसके अंदर ये बताना है कि सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मुला में आपके पास जो सरफेस करेक्शन टर्म आती है वो आपके पास मास नंबर के
किस पावर पे डिपेंड करती है? तो सिंपल इसके अंदर आपके पास सी ऑप्शन 2/3 पावर पर डिपेंड करती है, ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन द सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला द वॉल्यूम वी सरफेस एस कूलम्ब सी एंड पेयरिंग पी कंट्रीब्यूशन टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस जेड एक्स ए वेरी विद मास नंबर एस। तो कैसे वेरी करते हैं, ठीक है, वी प्रोपोर्शनल टू ए, तो देखिए ये तो आपके पास फर्स्ट 3 में है, तो डी ऑप्शन तो कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है सरफेस आपके पास प्रोपोर्शनल टू 8⁻²/3, तो यहाँ से आपके पास फर्स्ट ऑप्शन ही क्लियर हो गया है, ठीक है, पर फिर भी हम आगे देख लेते हैं। कोलम्बिक रिपल्शन में आपके पास -1/3 मिलता है, ठीक है, ये भी सही है, और फिर आपको पेयरिंग में आपको -3/4 मिलता है, ठीक है, ये भी सही है, तो आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट बैठता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर द मास ऑफ न्यूक्लियस विद Z प्रोटॉन्स एंड ए न्यूक्लियस। हियर f ऑफ a इज अ फंक्शन ऑफ a, y आपको गिवन है, z भी आपको गिवन है, ठीक है, ये आप सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके अंदर। a एंड ac आर कांस्टेंट ऑफ सुटेबल डायमेंशन फॉर फिक्स्ड a, द एक्सप्रेशन ऑफ z फॉर द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इज, ठीक है, ठीक है, तो आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, सेम वैसे ही स्टेप फॉलो होंगे, कर्ल m ओवर कर्ल z कीजिए फॉर द कांस्टेंट फॉर द फिक्स्ड a, तो सेम वैसे ही होगा आपके पास, ये कर्ल m ओवर कर्ल z निकालिए आप, ठीक है, फॉर फिक्स्ड a। तो जो इसके अंदर आपके पास ऑप्शन बनेगा वो आपके पास सी ऑप्शन बनेगा। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखिए मैंने m के फॉर्मूला में, तो देखिए जो मुझे m गिवन था, ठीक है, उसमें मैंने सभी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी हैं y और z की। अब सिंपली इसको फॉर द फिक्स्ड a आप कर्ल m ओवर कर्ल z कर लीजिए इज इक्वल टू 0, ओके, तो आप डेरिवेटिव कर लेंगे इसका, ओके, तो आपके पास ऑप्शन बनता है इसके अंदर सी। नेक्स्ट, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लाइट न्यूक्लियस ZA इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गिवन बाय अप्रॉक्सीमेटली फॉर्मूला दिस, वेयर n इज इक्वल टू a माइनस z इज द न्यूट्रॉन नंबर, द वैल्यू ऑफ z ऑफ द मोस्ट स्टेबल आइसोबार फॉर ए गिवन a इज, ओके। अब देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको हर बार डेरिवेटिव करके देखना पड़े, ठीक है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, पर आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अनुसार कि आपको फॉर्मूला लगाना सही है नहीं है, या फिर आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, विच यू विल नो ओनली बाय प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। तो z आपके पास कितना आएगा, a/2 प्लस ac/2 एसिमेट्रिक a⁻²/3, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप ac की वैल्यू और एसिमेट्रिक की वैल्यू, ac और एसिमेट्रिक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और सिंपली आपके पास z की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास ऑप्शन जो करेक्ट बनता है वो है, वो a बनता है। तो आइए इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। तो देखिए पहले मैंने इसके अंदर क्या किया, पहले मैंने इसके अंदर बेसिक फॉर्मूला जो हमारे पास था लिक्विड ड्रॉप मॉडल से वो मैंने लिख लिया, ठीक है, फिर उसको मैंने टर्म्स कंपेयर करके निकाल लिया, एसी और एसिमेट्रिक चाहिए था वो मैंने निकाल लिया, जो कि AC 3/4 एसिमेट्रिक -30। पहले तो आप ये चेक कर लीजिएगा कि आपके पास ये सही आया कि नहीं आया, ठीक है, आंसर तो आप बाद में चेक कीजिएगा, उसके बाद आपको बस क्वेश्चन फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने से और आंसर आपके पास है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, of the nuclei of mass number A is equals to 125, the binding energy calculated from the liquid drop model, that the coefficient for the Coulomb and the asymmetry energy are, तो AC and asymmetric are given is a maximum for, okay, तो A is equals to 125 दे रखा है, तो आपको बताना है, देखिए यहाँ पर भी आप सीधा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, Z is equals to आपके पास कितना था a/2 प्लस AC/2 एसिमेट्रिक a⁻²/3, ठीक, तो यहाँ पर आपको A गिवन है, AC पता है आपको, एसिमेट्रिक गिवन है, तो Z निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर सही बनता है वो आपके पास सी ऑप्शन है, टेल्यूरियम, ठीक है। तो आइए देख लीजिए इसका सोल्यूशन भी देख लीजिए। तो ये रहा आपके पास इसका सोल्यूशन, सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आपके पास सिंपल कैलकुलेशन से ही आपके पास आंसर 52 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन करेक्ट है और ये 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ES डिनोट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन इन द लिक्विड ड्रॉप मॉडल, द रेशियो ऑफ ES एल्यूमिनियम ऑफ टू द ES जिंक इज, ओके। तो ये भी आपके पास ईजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद की ट्राई कीजिए, ओके ओके। सो आई होप यू ट्राइड दिस क्वेश्चन। तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बता देता हूँ, इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो बी है, 4:3। तो आइए देखते हैं कि आपने कैसे किया और आप चेक कर लीजिए। आपके पास जो सरफेस एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल टू 8⁻²/3 है, ठीक है, तो इस बात का यूज़ करके तो आप सिंपली निकाल सकते थे, पर देखिए एक बात का ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रखा है कि सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिसकी वजह से इसकी पावर जो आपके पास 1/3 रह जाएगी, ठीक है, तो इसके अंदर जो ऑप्शन बनता है वो बी 4:3। तो बस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना था और आंसर आपके हाथ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइंडिंग एनर्जी बी ऑफ न्यूक्लियस इज अप्रॉक्सीमेटली बाय अ फॉर्मूला दिस, where Z is the atomic number and A is the mass number of nucleus. If A4/A3 is equal to 30, the atomic number Z for the naturally stable isobar is, okay। तो यहाँ पर भी आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, Z is equal to A/2 प्लस AC 2 एसिमेट्रिक a⁻²/3, ओके। तो इसके अंदर आपके पास जो आंसर बनेगा वो सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा, ठीक है, आप खुद करेंगे इस क्वेश्चन को, ओके। सो आई होप यू ट्राइड दिस क्वेश्चन। तो आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए A3/A ऊपर दे रखा था, तो ये देख लीजिए आपको दे रखा था ऊपर A4/A3, ठीक है, जबकि आपके पास वो जो होता है AC/एसिमेट्रिक होता है, इसलिए आप उसे रिवर्स करके लिखेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन सी बनता है, ओके। नेक्स्ट, Bethe-Weizsäcker फॉर्मूला फॉर द बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर Z एंड मास नंबर A इज दिस। अब देखिए
ये कितना दे रखा है 15.8 माइनस 18.3 8 माइनस 0.714 z माइनस 1/8 अब आप एक बात ध्यान से देखिएगा, वैसे तो मैं ये फॉर्मूला नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है, पर यहाँ पर z स्क्वायर नहीं है, z माइनस 1 है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसने यहाँ पर ये एनर्जी चेंज कर दी है कूलम्बिक रिपल्शन में, ठीक है। बाकी आपके पास सेम है। तो रेशो ऑफ z बाई फॉर द मोस्ट स्टेबल आइसोबार्स, तो आपके पास z बाई का रेशो क्या होगा फॉर a इज 64 न्यूक्लियस नियरेस्ट। ओके, तो मैंने आपको कहा था जैसे कि आपको इसका डेरिवेटिव वापस से करके देना पड़ेगा। अगर आपको वो फॉर्मूला चेंज हो गया कि z स्क्वायर की अगर जगह z माइनस 1 आ गया तो आपको डेरिवेटिव वापस से करना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो कल भी ओवर कल z कीजिए फॉर द फिक्स्ड a, ठीक है, इस सब का डेरिवेटिव कीजिए और निकालिए कितना आता है। तो आई होप कि आपने ट्राई करके देखा होगा। तो देखिए इसका डेरिवेटिव आप चेक कर लीजिए खुद का भी। इसका डेरिवेटिव किया इक्वल टू 0 किया तो आपके पास z बाई आपके पास 0.45 अप्रॉक्सीमेटली आ गया। तो सी ऑप्शन करेक्ट बैठता है इसका। तो आगे चलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सेमी इंपिरिकल बाइंडिंग एनर्जी और मास फार्मूला। तो देखिए जो दो पहली एप्लीकेशन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो क्यू वैल्यू इन अल्फा डीके, क्यू वैल्यू इन बीटा डीके फॉर द मिरर न्यूक्लियाई विल बी कवर्ड इन क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन। ओके, थर्ड के बारे में बात करते हैं टू कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी, एटॉमिक मास, न्यूक्लियर मास यूजिंग सेमी इंपिरिकल बाइंडिंग एनर्जी और मास फार्मूला, ठीक है। तो ये तो हम करते आई हैं, जैसे कि आपके पास यूजिंग सेमी इंपिरिकल बाइंडिंग एनर्जी फार्मूला कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कैल्शियम 40। ओके, तो इजी आपके लिए कर लेंगे एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। हमने आपको दोनों फॉर्मूले बता रखे हैं, तो ए वी ए एस ए सी ये सब इनकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप इसको टैली कर लीजिएगा, ठीक है, आप सिर्फ मैच कीजिएगा और ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी तो आपके पास 340.14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी और मास आएगा आपके पास 37225.374 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ओके, आगे बात करते हैं मास पैराबोला की, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर अगेंस्ट बीटा डिके। हम सभी जानते हैं कि आपके पास बीटा नेगेटिव डिके कैसे होती है, आपके पास कोई रेडिएटिव न्यूक्लियर वो रेस्ट पड़ा है तो वो डिके होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर बीटा नेगेटिव डिके हो रहा है, ठीक है, और एंटी न्यूट्रिनो एमिट हो रहे हैं आपके पास, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा इसके अंदर z इंक्रीज कर जाता है और a सेम रहता है। बीटा पॉजिटिव डिके में आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपके पास z डिक्रीज कर जाएगा और a सेम रहेगा, ठीक है। तो ये बीटा पॉजिटिव में और न्यूट्रिनो इसके अंदर एमिट होता है। अब देखिए जो इसके अंदर y बनता है, अगर वो भी आपके पास रेडियो एक्टिव होता है तो ये आपके पास फर्दर डिके होगा, जैसे x से y में होगा, फिर y से r में, तब तक होगा जब आपके पास स्टेबल एंड प्रोडक्ट नहीं बन जाता। एटॉमिक मास का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखिए बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला मैंने सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला पुट कर सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो डेल है, डेल की वैल्यू आपके पास कितनी थी, प्लस ए पी ए टू द पावर माइनस 3/4 फॉर इवन जेड इवन एन, सो विच फॉर्म्स ए इज इक्वल्स टू इवन एंड 0 फॉर ऑड जेड इवन एन और इवन जेड ऑड एन which gives us a is equals to odd and minus ap a to the power minus 3/4 for odd z and odd n for a is equals to even। ओके, अब देखिए अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूं मास वर्सेस जेड का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो देखिए आपके पास जो अपर पैराबोला होगा ना वो आपके पास नेगेटिव वाले का बनेगा, ठीक है, और जो लोअर पैराबोला होगा वो आपके पास पॉजिटिव बनेगा। अब ऐसा क्यों है आपके पास, देखिए नेगेटिव कैसे क्योंकि यहाँ पर आपके पास पूरे फॉर्मूले ऊपर आप देखिए कि आपके पास माइनस डेल है, तो जिसकी वजह से आपके पास जो माइनस टर्म होगी डेल की वो कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है, उसकी वजह से आपके पास अपर पैराबोला बन रहा है और लोअर पैराबोला आपके पास पॉजिटिव टर्म से आ रहा है। ओके, क्योंकि आपके पास वहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपके पास 2 वैल्यूज़ फॉर ए इज इक्वल्स टू इवन और 1 वैल्यू फॉर ए इज इक्वल्स टू ऑड। ओके, अब देखिए आगे ये मास का फॉर्मूला मैंने वापस लिख लिया। अब देखिए इसे आप प्रिसाइसली ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट टर्म इसके अंदर है जो आपके पास जेड पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है, नेक्स्ट टर्म आपके पास जो जेड की कॉफिशिएंट है, ठीक है, ऊपर से आप इसमें से निकाल लेंगे क्यू और आर की वैल्यू, और आपके पास यहाँ पर जेड स्क्वायर के कॉफिशिएंट है जितने भी, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन जो आपके पास है इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला फॉर गिवन ए, ठीक है, तो ये पैराबोला बनता है आपके पास, ठीक है, तभी हम वहाँ पर पैराबोला बना रहे हैं, मास वर्सेस जेड का जब आप ग्राफ बना रहे हैं तो पैराबोला बना रहे हैं हम, ठीक है। आगे अगर आप इसके अंदर आपको स्टेबल आइसोबार निकालना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, कर्ल एम ओवर कर्ल जेड कर देंगे फॉर ए इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो उसके अंदर आप जेड की वैल्यू निकाल लेंगे इजीली। नेक्स्ट बात करते हैं ऑड ए इज इक्वल्स टू 1/3। अब देखिए ऑड आ गया आपके पास, तो इस केस में आपके पास क्या होता है, डेल 0 होता है, ठीक है, तो एक 1 वैल्यू ऑफ मास देखने को मिलेगी आपको। तो यहाँ पर आपको देखिए मास वर्सेस जेड का जब ग्राफ बनता है तो बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव डिके आपके पास तब तक होते हैं, देखिए लेफ्ट और राइट हैंड साइड से, जब तक आपको स्टेबल न्यूक्लियर मिल जाता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर शो किया गया है। ओके, नेक्स्ट आप इवन ए का भी देख लीजिए। अब इवन में क्या केस होता है, इवन में आप देखिए आप जानते हैं कि आपके पास 2 पैराबोला बनेंगे, ठीक है, तो इसका स्टेबिलिटी न्यूक्लियर जो आपके पास है वो देखिए कभी आपको अप दिखेगा कभी डाउन दिखेगा, ठीक है, तो आपके पास इसके अंदर 2 स्टेबल न्यूक्लियर इन लोअर पैराबोला देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 2 स्टेबल न्यूक्लियर इन लोअर पैराबोला आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये इवन ए इज इक्वल टू 102 के केस में लिया हमने, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं मास डिफरेंस बिटवीन मिरर न्यूक्लियर। देखिए नीचे मैंने कुछ मिरर न्यूक्लियर के एग्जांपल लिख रखे हैं, जैसे 3Li7 4Be7, ठीक है, और 5B11 6C11 और तीसरा आपके पास पेयर 14Si29 15P29। ओके, तो इसमें हमने कंडीशन देखी थी फॉर ए इज इक्वल टू ऑड की आपके पास ए कितना होता है 2Z+1 पेयर के लिए एप्लीकेबल होता है, और ये चीज़ भी देखी थी कि मॉड Z1 - Z2 इक्वल टू 1 रहता है, और आपके पास Z1 स्क्वायर और माइनस Z2 स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ए ही आएगा। यहाँ पर आपके पास Z1 Z2 से बड़ा होना चाहिए।
अब देखिए इन मिरर न्यूक्लियर के लिए जो आपके पास मास फॉर्मूला आएगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है, मास डिफरेंस डेल एम इज इक्वल टू एम एच माइनस एम एन प्लस ए सी ए टू द पावर 2/3 एम ई वी बाई सी स्क्वायर। ओके, ये आपके पास एटॉमिक मास की फॉर्म में था। अब न्यूक्लियर मास की फॉर्म में आपके पास डेल एम इज इक्वल टू एम पी माइनस एम एन प्लस ए सी ए टू द पावर 2/3 एम ई वी बाई सी स्क्वायर। तो इसका डेरिवेशन अब हम देखते हैं आगे। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर मास का फॉर्म लिख लिया है, ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी की टर्म्स भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ए ऑड है तो यहाँ पर डेल जीरो रहेगा, ठीक है। अब आप ये कंडीशन भी ध्यान रखिएगा कि मेरा न्यूक्लियाई फॉर जेड ई एंड जेड माइनस वन ई, ए आपके पास 2z-1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लेके चल रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं ZXA, तो आपके पास इसके अंदर Z प्रोटॉन्स हैं और Z-1 क्या है, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं। और दूसरा हम न्यूक्लियर लेके चल रहे हैं Z-1YA, ठीक है। यहाँ पर आपके पास इसके अंदर Z-1 प्रोटोन है और Z आपके पास इसके अंदर न्यूट्रॉन है, तभी तो उसको डिफाइन करेगा ये कि आपके पास मिरर न्यूक्लियर है। और इसके अंदर दूसरी कंडीशन क्या है, अगर अब देखिए A इज इक्वल टू 2z-1 हम कह रहे हैं, ठीक है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं A माइनस 2z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं, फॉर वन मिरर न्यूक्लियाई Z प्रोटॉन्स एंड Z-1 न्यूट्रॉन्स। ओके, तो हम पहला ये लेके चल रहे हैं, ठीक है। और अब इस Z हम ये लेके चल रहे हैं कि आपके पास Z प्रोटॉन्स है और Z-1 न्यूट्रॉन्स है। तो हम ये जो आपके पास नंबर है, ठीक है, ये हम ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो देखिए आप ZmHc², ठीक है, तो वहां पर Z प्रोटॉन्स थे वो तो उतना ही है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या था, प्लस NMnc², एन यहाँ पर क्या था, A माइनस Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने Z-1 MnC² कर दिया, ठीक है, ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। बाकी सभी वैल्यूज सेम की सेम वैसी रखी है मैंने, ठीक है। और एक और चीज, जो हमने A माइनस 2Z लास्ट में एसिमेट्रिक वाले में आया था, उसको हमने इस कंडीशन से 1 कर दिया, ठीक है। ओके, अब देखिए वैसे ही अब दूसरे मिरर न्यूक्लियर के लिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर आपके पास Z-1 प्रोटॉन्स हैं और Z न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो ये भी मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके अंदर आपके पास जो Z है शुरुआत में, वहां पर आपके पास Z-1 आ जाएगा, क्योंकि इस बार हमारे पास प्रोटॉन्स Z-1 है, ठीक है, और न्यूट्रॉन्स आपके पास Z है, ठीक है। और यहाँ पर भी एसिमेट्रिक वाले टर्म में A माइनस 2Z 1 हो जाएगा। ओके, अब देखिए आपको सिंपली क्या करना है, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में से माइनस कर देना है। तो यहीं से ही आप देख लीजिए माइनस क्या क्या हो रहा है। देखिए अगर आप MHc² वाले टर्म देखेंगे तो उसके अंदर आपके पास क्या माइनस होगा, Z-1 माइनस Z, तो इसके अंदर आपके पास बच जाएगा माइनस का MHc²। ओके, और अगर आप नेक्स्ट टर्म देखेंगे MnC² वाली, तो उसके अंदर आपके पास होगा Z माइनस Z प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास Z कट जाएगा और MnC² रह जाएगा, ठीक है। बाकी आपके पास ये वॉल्यूम कांस्टेंट वाली टर्म, बाकी जो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी वाली टर्म्स थी आपके पास वॉल्यूम वाली कट जाएगी, सरफेस एरिया वाली कट जाएगी और सी वाली आपके पास बच जाएगी, ठीक है, और एसिमेट्रिक वाली कट जाएगी, ठीक है। तो आपको कुछ ये टर्म्स देखने को मिलेंगे, आगे देखते हैं। तो देखिए हमने वो माइनस कर दिया है, ठीक है, तो हमने जैसे कि आपको कहा था कि आपके पास MHc² बचेगा माइनस MnC², और ये आपके पास माइनस करने पर फोर्थ इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए जो पीछे हमने एग्जांपल लिया था वहां पर हमने चार्ज लिए थे Z और Z+1e, ठीक है। यहाँ पर हम सिमिलरली वैसे अगर उस सभी स्टेप्स को फॉलो करें और Z+1e और ZE के लिए करें तो आपके पास MaZ+1c² माइनस MaZc² इतना आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों में फर्क देखिए आप कितना है। अब आप देखिए आपके पास ऊपर 2Z-1 बन रहा है और यहाँ पर 2Z+1 बन रहा है, ठीक है। तो अब देखिए हमने ये भी देखा था कि आपके पास कंडीशन थी आपके पास 2Z+-1 इक्वल्स टू A, तो देखिए दोनों टर्म्स को मैं A पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास एटॉमिक मास डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया है, फ्रॉम द फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन इज MHc² माइनस MnC² प्लस ACA बाय ए टू द पावर 1/3। ओके, यहाँ पर आपके पास AC कितना है, 3/5 E²/4πε0 R0। ओके, तो यहाँ से हमारे पास मास डिफरेंस का फॉर्मूला बन गया है, ठीक है, जो कि हमने पहले देखा था फॉर द एटॉमिक मास एंड न्यूक्लियर मास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, द मास डिफरेंस बिटवीन द पेयर ऑफ मिरर न्यूक्लियाई 6C11 5B11। तो देखिए दोनों मिरर न्यूक्लियाई आपके पास, यहाँ पर आपके पास Z प्रोटॉन्स कितने हैं 6 हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं 5 है कार्बन में। दूसरी तरफ आपके पास बोरोन में 5 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन आपके पास 6 है, ठीक है। तो मिरर न्यूक्लियर हुई है इज गिवन बाय डेल MEV/c², ठीक है। तो इनका आपके पास मास डिफरेंस डेल MEV/c² दे रखा है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला द मास डिफरेंस बिटवीन द पेयर ऑफ मिरर न्यूक्लियाई, अब दूसरे मिरर न्यूक्लियर दे रहे हैं और इसके अंदर पूछा गया आपके पास मास डिफरेंस कितना होगा, मतलब मींस डेल एम कितना होगा आपके पास, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जैसे देखिए MP और MN दे रखा है, तो मतलब कि यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम न्यूक्लियर मास डिफरेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, एटॉमिक वाला लगाएंगे, तो एटॉमिक वाला दे नहीं रखा ना इसके अंदर। ओके, तो आप ट्राई कीजिए इसे, MP और MN की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो पहले आप तो इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करेंगे, कार्बन और बोरोन के लिए आप मास डिफरेंस फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। वहां से आप AC की वैल्यू निकाल लेंगे और AC की वैल्यू निकालने के बाद आप फ्लोरीन और ऑक्सीजन के लिए मास डिफरेंस फॉर्मूला लगाएं, वहां पर आप AC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इजीली निकाल सकते हैं। देखिए A कितना है, A आपके पास ऊपर वाले में तो 11 और नीचे वाले में 17 है, ठीक है, इजीली हो जाएगा क्वेश्चन, आपको अगर फॉर्मूला ध्यान है तो। अब देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। ओके, मास डिफरेंस MP माइनस MN प्लस AC ए टू द पावर 2/3। जैसे कि हमने कहा कार्बन और बोरोन के लिए हम पहले मास डिफरेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो MP और MN की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है प्लस AC। अब A कितना था कार्बन और बोरोन में 11 था, तो आपके पास इसके अंदर AC की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हम फ्लोरीन और ऑक्सीजन के लिए मास डिफरेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया और सिंपली आपके पास B ऑप्शन करेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। अब तो आगे कैलकुलेशन थी ना। ओके, आगे चलते हैं।
कूलम एनर्जी डिफरेंस फॉर अ पेयर ऑफ मिरर न्यूक्लियाई। और यहाँ पर भी हम जो न्यूक्लियर लेके चल रहे हैं वो ऑड ए है, ठीक है। तो हमने कूलम एनर्जी देखी थी, कितनी थी आपके पास 3/5 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई होल स्क्वायर बाय आर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी, ये पहले भी हमने बात की थी। सो फॉर अ पेयर ऑफ अ मिरर न्यूक्लियाई हैविंग रेडियस आर, तो ए तो सेम होता है एंड चार्ज यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं जेड ई एंड जेड माइनस 1 ई, ओके। तो उसके अंदर आपके पास कूलम एनर्जी कितनी है 3/5 ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसके अंदर आपके पास कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2z माइनस 1 बन जाएगा ये, ठीक है। अब हम सिमिलरली दूसरा पेयर ऑफ मिरर न्यूक्लियर ले रहे हैं जिसके अंदर आपके पास चार्ज कितना है z+1e और ze, ठीक है। इसके अंदर आपके पास कितना आ जाएगा कूलम एनर्जी डिफरेंस 2z+1 हो जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं पेयर ऑफ मिरर न्यूक्लियर के आपके पास कंडीशन क्या होती है, a इज इक्वल टू 2z+-1 फॉर द ऑड a, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो कूलम एनर्जी डिफरेंस फॉर्मूला आ जाएगा वो 3/5 ई स्क्वायर a बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ओके सिंपल। ओके जो अभी आपके पास एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला आया है, कूलम एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला आया है, ठीक है। इसके अंदर आप थोड़े से और चेंजेस कीजिए, ठीक है, कांस्टेंट बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा टर्म, ठीक है। तो आपके पास कितना आता है डेल ई सी 3/5 ई स्क्वायर ए बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे आर इज टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा डेल ई सी इज टू 3/5 ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, और ऊपर आपके पास ए टू द पावर 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता लगता है, तो यहाँ पर आप देखिए ए सी आपके पास कितना है 3/5 ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना था 1.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक। तो यहाँ से आप सिंपली लिख सकते हैं डेल ई सी इज इक्वल टू ए सी ए टू द पावर 2/3। अब हम निकालते हैं रिलेशन बिटवीन डेल एम एंड डेल ई सी फॉर अ पेयर ऑफ मिरर न्यूक्लियर। तो डेल एम आप जानते हैं, डेल एम आपके पास कितना था एम पी माइनस एम एन प्लस ए सी ए टू द पावर 2/3। ये मैं न्यूक्लियर के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, एम ई वी बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ए सी ए टू द पावर 2/3 था ना, तो वहाँ पर आप डेल ई सी इजिली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप एटॉमिक वाले फॉर्मूले के लिए भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, ये आपने रिलेशन निकाली है डेल एम और डेल ई सी के लिए, ओके। ओके अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। द डिफरेंस इन द कूलम एनर्जी बिटवीन द मिरर न्यूक्लियाई सी आर एंड एम एन इज 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। तो आपको कूलम एनर्जी डिफरेंस दे रखा है 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। अज्यूमिंग दैट द न्यूक्लियर हैव अ स्फेरिकली सिमेट्रिक charge distribution and that E square is proportional to 1 mega electron volt Fermi. The radius of the Mn nucleus is ओके तो देखिए ये भी आपके पास सिंपली फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन है और न्यूक्लियर के सभी क्वेश्चन 5 नंबर में ही आते हैं, तो सीधा आपके पास 5 नंबर अंदर हो जाएंगे अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है तो, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला स्प्लिट करना है। अब देखिए यहाँ पर A49 है आपके पास, ठीक है, एक तो ये बात देखिए, और यहाँ पर आपके पास देखिए CR और MN ये मिरर न्यूक्लियर है, ठीक है, ये दे रखा है हमें, ठीक है। तो सिंपली आपके पास हो जाएगा क्वेश्चन ये। तो देखिए इसके अंदर आपके पास कूलम एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, डेल ई सी इज इक्वल टू 3/5 ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बाय आर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो 1 है, ठीक है। तो आपके पास ई स्क्वायर दे रखा है अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ओके तो देखिए डेल ई सी हमें 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, ई स्क्वायर हमें दे रखा है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी, ठीक है, वेयर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1, ओके। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, डेल ई सी इज इक्वल टू 3/5 ई स्क्वायर ए बाय आर। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर, ये मेरे न्यूक्लियर की कंडीशन है जब ए इज इक्वल टू ऑड है आपके पास, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तो कैलकुलेशन रह गई है, तो आपके पास बी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है। अब आगे चलते हैं शेल मॉडल। Shell model was discovered in 1949 by Mayer, Haxel, Jensen and Suess, valid for A less than 150 and A between 190 to 220, although they too have discrepancies or exceptions in calculations. In this model, it is required to consider the motion of an individual nucleon in potential, which would give rise to the existence of a nuclear shell structure similar to the electronic shells in an atom. ठीक है, तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमने यहाँ पर कंसीडर किया है कि आपके पास न्यूक्लियन इंडिविजुअल मोशन कर रहे हैं एक पोटेंशियल में, ठीक है, जिससे हम न्यूक्लियर शेल स्ट्रक्चर का एग्जिस्टेंस उभरता हुआ देखेंगे, जो कि आपके पास सिमिलर किससे होगा, इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इन एन एटम के सिमिलर होगा। तो जैसे कि हम एटम के इलेक्ट्रॉनिक लेवल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, सिमिलरली उसी तरीके से हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी सेपरेटली फिल करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी लेवल में। तो इसमें ही जो लास्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, तो इसमें भी जो लास्ट अनपेयर्ड पार्टिकल रह जाते हैं वही आपके पास न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं हम आयनाइजेशन पोटेंशियल की। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल आप जानते हैं कि एक एटम में से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी खर्च होती है उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास देखिए जो इनर्ट गैसेस हैं उनके अंदर आपके पास ये, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है तो उनको आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा रिक्वायर होता है, तो उनके लिए आप पीक्स देखेंगे यहाँ पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेनॉन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पीक्स देखने को मिलेंगी। तो ये देखिए ये तो हमने एटम में देखा, अब हम न्यूक्लियस में चलते हैं क्योंकि हम न्यूक्लियस में इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करूँ, न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी एसन से हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें न्यूक्लियस में से न्यूट्रॉन को हटाना है, तो हमने क्या देखा, देखिए हमने किसी न्यूक्लियस को एनर्जी दी, ठीक है, सेपरेशन एनर्जी प्रोवाइड की, तो उसके अंदर आपके पास ये देखिए ये ZXA को एनर्जी दी गई है, तो यहाँ पर भी आपके पास ZXA-1 आएगा क्योंकि आपके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो तो सेम ही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप ZXA-1 कर लीजिए क्योंकि Z तो सेम ही है, एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है। तो आपके पास ZXA-1 होगा और आपके पास न्यूट्रॉन इजेक्ट हो गया। तो हमने देखा कि आपके पास जो सेपरेशन एनर्जी है वो आपके पास ज़्यादा देखने को मिली है 2, 8, 20, 28, 50, ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया मैजिक नंबर।
अब आगे देखते हैं प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी में क्या हमें वहाँ पर भी इन्हीं नंबर पर पीक मिलते हैं, ठीक है। तो जब हम प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी में देखेंगे तो आपके पास उसके अंदर सेपरेशन एनर्जी sp प्रोवाइड की ZXA को, यहाँ पर देखिए अब आपके पास न्यूक्लियर चेंज हो जाएगा, Z-1 Y आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि आपके पास वहाँ पर Z सेम था, ठीक है, Z-1 YA-1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रोटोन इजेक्ट हो गया आपके पास, ठीक है, एक प्रोटोन इजेक्ट हो गया। तो यहाँ पर भी हमने क्या देखने को मिला कि आपके पास जो सेपरेशन एनर्जी के जो पीक्स आ रहे हैं वो आपके पास 2, 8, 20, 28, 50, 82 इन पर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने मैजिक नंबर से इन्हें डिनोट कर दिया। तो जो मैजिक नंबर निकल कर आए हैं फॉर द प्रोटॉन्स 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड द न्यूट्रॉन्स 2, 8, 20, 28, 50, 28, 50, 82, 126, 184, ओके। जहाँ पर इसके अंदर 184 क्या है, सुपर हैवी न्यूक्लियर आर्टिफिशियली फॉर्म्ड इन लैब, ओके। अब आगे देखते हैं डबली मैजिक न्यूक्लियर, ठीक है। बोथ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन नंबर आर इक्वल टू मैजिक नंबर। तो अब देखिए जैसे कि एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर 2He4 का एग्जांपल लें इसके अंदर, तो यहाँ पर Z भी 2 है और न्यूट्रॉन भी 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास डबली मैजिक आ गया ना ये, ठीक है, 8O16। तो यहाँ पर आपके पास प्रोटॉन भी 8 है और न्यूट्रॉन भी 8 है, ठीक है। तो ये भी आपके पास डबली मैजिक नंबर है। कैल्शियम के बारे में बात करें 20Ca40, तो यहाँ पर आपके पास Z भी 20 और न्यूट्रॉन भी 20 है, ठीक है। अगर कैल्शियम की आइसोटॉप के बारे में बात करें 20Ca48, तो यहाँ पर आपके पास Z20 और न्यूट्रॉन में आपके पास 28 आ गया, तो ये भी आपके पास डबली मैजिक नंबर है। लेड के बारे में बात करें 82Pb208, तो यहाँ पर आपके पास Z82 है और न्यूट्रॉन 126 है। तो ये सभी डबली मैजिक नंबर के एग्जाम्पल थे कुछ, ओके। अब आगे बात करते हैं एविडेंस टू शो द एक्जिस्टेंस ऑफ मैजिक नंबर एंड सेल स्ट्रक्चर। तो देखिए मैजिक नंबर का एक्जिस्टेंस तो अभी हम देख के आए हैं कि हमने SN और SNP की एनर्जी देखी थी। सो SN एंड SNP कॉरस्पॉन्डिंग टू मैजिक नंबर इज लार्ज, तो ये एक एविडेंस हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास स्टेबल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल द 3 नेचुरल रेडियोएक्टिव सीरीज आर द 3 आइसोटॉप्स ऑफ लेड, ठीक है। तो लेड आइसोटॉप्स हमने देखे थे कि आपके पास डबल मैजिक न्यूक्लियर थे आपके पास ये, ठीक है। और 3 रेडियो एक्टिव सीरीज आपके पास कौन सी है, एक्टिनियम, यूरेनियम और थोरियम, ठीक है। इन सब का आपके पास जो एंड प्रोडक्ट है वो आपके पास लेड बनता है, ठीक है, उनका आइसोटॉप्स बनते हैं। तो ये भी हमें एक मैजिक नंबर का एक्जिस्टेंस शो करता है। थर्ड आपके पास नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स हुज न्यूक्लियर कंटेन मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव जनरली ग्रेटर रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है। तो उनकी अबंडेंस ज़्यादा है आपके पास, जहाँ पर आपको मैजिक नंबर देखने को मिलता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, ठीक है। उनकी अबंडेंस आपके पास 60% ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे बेरियम 82, बेरियम 138, ठीक है। तो आपके पास इसके अंदर इसकी जो अबंडेंस है वो आपके पास 71.66% है। फोर्थ पॉइंट, नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेनिंग मेजर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज यूजुअली लार्ज, ठीक। तो जिनके आपको मैजिक नंबर देखने को मिलते हैं उसके आपके पास जो नंबर ऑफ आइसोटॉप्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्टेबल्स होते हैं। सो नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेनिंग मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज यूजुअली लार्ज, ओके। तो आपके पास स्टेबल आइसोटॉप ज़्यादा देखने को मिलते हैं जिन एलिमेंट्स में हमें मैजिक नंबर देखने को मिलता है। जैसे कि आप कैल्शियम की बात करें 20Ca40, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 6 स्टेबल आइसोटॉप्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और 10 के बारे में बात करें Z=50, तो यहाँ पर आपको 10 स्टेबल आइसोटॉप्स देखने को मिलेंगे। तो ये आपको एविडेंस शो करता है कि मैजिक नंबर का एक्जिस्टेंस है कहीं ना कहीं। तो